So, hi everyone. We're going to have the last class of Hindu Marriage Act today. So, in the last class, we have almost discussed all the important provisions, and we have also discussed about the transfer of the proceedings in certain cases, and we have also discussed about the section 23 that speaks about the decree in the proceeding. Okay, so in today's class, we are going to talk more about the relief in the divorce proceedings and what are the provisions regarding the maintenance and other cases. We are going to have a detailed discussion on those provisions in today's class. Okay. So when we are talking about the relief for respondent in divorce and other proceedings, then what it exactly speaks. Okay. Let's understand it. Section 23A. It speaks. Let's read it out once. In any proceeding for a divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not only oppose the relief sought on the ground of the petitioner's adultery, cruelty, desertion, but also make a counter claim for for the same relief under the act on that specific ground. And if the petitioner's adultery, cruelty, or desertion is proved, the court may give to the respondent any relief under this act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground. Section 23A Hindu Marriage Act. Okay, let's understand it. What it specifically implies. So, for example, I'm just making you understand through a little example of this. For example, I have taken certain kind of okay, leave it. Just take an example. This for an example, I am a married person. Okay, मान लो मैं शादीशुदा हूँ. I'm having a husband. Okay, so what happens that my husband has filed a petition of divorce against me. उन्होंने कोर्ट में जाके ये बोला कि मुझे अपने पत्नी से, अपने बीवी से डिवोर्स चाहिए. किसी ने बोला? मेरा हस्बैंड ने जाके किसको बोला? कोर्ट को बोला कि मुझे अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, मैं अपने पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता हूँ. तो कोर्ट ने पूछा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्राउंड जिसलिए आपका पत्नी से आप अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहते हो. तो मेरे हस्बैंड ने वहां पर बोला कि मेरा पत्नी जो है शी डज क्रुएल्टी टू मी. वो मेरे साथ क्रुएल्टी करती है, मेंटल क्रुएल्टी करती है, फिजिकल क्रुएल्टी करती है. शी इज हैविंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड फॉर दिस रीजन आई डोंट वांट टू स्टे विथ माय वाइफ एनी. ओके, so when my husband is filing the petition against me in the court of law on the ground of the cruelty or extramarital affairs against me, okay, in that circumstances, who is the petitioner over here? My husband, obviously. And who is the respondent? Me. The wife is the respondent over here. Okay, so when my husband is the petitioner and I am the respondent in this case, then you tell me what the court will do. The court will issue a notice to the respondent, means to me, because I am the respondent over here. My husband has filed a petition against me for the divorce petition and he is the petitioner, then I am the respondent in this case. The court will pass a notice to me. Then what is my duty over there? I should appear in the court of law and I should prove that I have all my rights to prove my innocency in the court of law. That is what we have understood about the equal opportunity to everyone. Everyone has the legal opportunity to represent their self. Okay, for example, if I am a person, I have all my rights to represent that मुझे क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. That is all my right to represent. Okay, so when we are talking about the relief of the respondent in the divorce proceeding, so it is not mandatory that the as the petitioner is the person who has filed the case, the court will consider the petitioner as the innocent person. No, that is not the situation. Even if I am the respondent over here, I have all right to counter claim the petition.
That means if my husband has filed a petition for cruelty and abuse or any kind of the extramarital affairs against me, I have all my rights to do the counter claim. What do you understand by the counter claim? Counter claim means, for example, I know that my husband is also doing the act of the cruelty against me and my husband is doing the extramarital affairs. Okay. And I have all the proof of that my husband is cheating on me. Okay. So the point arises when I get to know that my husband has filed a petition against me. So you say, is it justified that just I'll stay silent and tolerate? Can is it possible? मतलब जहां पे मेरा कोई गलती नहीं है, मेरे अगेंस्ट जाके मेरे हस्बैंड ने कोर्ट पे ये बोलता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ चीटिंग कर रही है या फिर उसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से वो मेरे साथ क्रुएल्टी कर रही है. इज इट लेजिटिमेट दैट आई विल टॉलरेट दिस? आप बताइए, इज इट लेजिटिमेट? द आंसर इज नो. दिस इज नॉट एट ऑल लेजिटिमेट टू टॉलरेट इट. मैं क्यों टॉलरेट करूं? क्योंकि मैं जिस गलती की ही नहीं उसको टॉलरेट में नहीं कर सकती. इसलिए आई हैव द राइट टू डू द काउंटर क्लेम. मतलब उसी ने जो क्लेम मेरे ऊपर किया है उसी के अगेंस्ट, उसी क्लेम को काउंटर करने का पूरा हक मेरे पास है. That means if my husband has filed a petition of the divorce against me on the ground of the cruelty, that I have right to file a petition, to file a counter petition against my husband. कि देखिए मेरा हस्बैंड जो जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहा है ना, ही इज नॉट द ही इज नॉट ऑल्सो ए गुड पर्सन. अगर मेरे अगेंस्ट वो सारे ये क्रुएल्टी का चार्ज लगा रहा है तो आई एम ऑल्सो फाइलिंग ए काउंटर पिटिशन, फाइलिंग ए काउंटर कंप्लेन, फाइलिंग ए काउंटर केस अगेंस्ट हिम दैट वो भी मेरे साथ क्रुएल्टी किया है, वो भी चीटिंग किया है एंड ही हैज डन दिस. So now this is the discretion of the court to decide सही कौन है गलत कौन है. कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करेगा तो what is the right thing and what is the wrong thing. Now and after the decision of the court will give the final verdict. And if the court found that the argument of the respondent is valid, अगर कोर्ट को ये लगता है कि रेस्पोंडेंट जो भी काउंटर क्लेम दिया है वो सारा सही है, पिटिशनर यहाँ पे फॉल्स केस अपियर किया है या पिटिशनर यहाँ पे गलत है, देन द जजमेंट विल बी पास ऑन माई बिहाफ. जजमेंट जो होगा ना वो मेरे सपोर्ट पे ही दिया जाएगा. बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ द कोर्ट कि यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है ऑफ द हियरिंग. दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, जहाँ पे हर किसी को अपना बात बोलने का हक मिलता है. यहाँ पे आई हैव ऑल्सो गट माई राइट टू स्पीक अप कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है एंड मेरे साथ मेरा हस्बैंड क्या क्या कर रहा है. सो व्हेन आई हैव फाइल्ड माई काउंटर क्लेम, ओके, then this is the discretion of the court to decide what is right and what is wrong. And if the court found that the petitioner is wrong over here, the court will pass a verdict on the support of the respondent only. Okay, this is what speaks about section 23A about the counter claim. मतलब अगर आप किसी के अगेंस्ट किसी भी कंप्लेन फाइल करते हो, किसी भी क्लेम करते हो, देन उसी का काउंटर करने का पूरा हक किसको है? रेस्पोंडेंट को है. उसी के अगेंस्ट जो जो ग्राउंड पे एलिगेशन लगाया गया है वो उस एलिगेशन को रिवर्स कर सकता है, उसी को प्रूव कर सकता है कि ये एलिगेशन गलत है करके. एंड दूसरा, अगर उसी को पिटिशनर के अगेंस्ट और कोई दूसरा कंप्लेन फाइल करनी होती है, वो काउंटर क्लेम के थ्रू वो कंप्लेन भी फाइल कर सकता है या कर सकती है. इसी को बोलते हैं काउंटर क्लेम एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द अंडर सेक्शन 23A of the Hindu Marriage Act 1955. Okay. Then comes maintenance, pendant light and expenses of the proceeding. Okay. It speaks about the maintenance. Okay. Then what does it mean? Wherein any proceeding under this act appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her
or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the wife or husband, order the respondent to pay the petitioner's expenses of the proceeding and monthly during the proceeding such sum has, having regard of the petitioner's own income and the income of the respondent, it may seem to the court to be reasonable. Okay, provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding shall, as far as possible, be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the wife or the husband, as the case may be. Okay, so this is explained under section 24 about the maintenance and expenses of the proceeding. So what do you understand by the maintenance? Maintenance means, for example, just take an example of this. Uh, I am having a divorce from my husband, okay? And me and my husband are not staying together. And I am a housewife. I am not earning anything, okay? And you know that everyone in this society is not capable to do the earning, okay? सोसाइटी में हर कोई अर्निंग करने का कैपेबल नहीं होता है. दिस इज द क्लियर कट थिंग वी ऑलरेडी नो, बिकॉज देयर आर ए लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स जो कि घर संभालती है, जो कि घर देखती है. दे आर नॉट कैपेबल टू डू देयर ओन अर्निंग बाय देमसेल्व्स. फॉर एग्जांपल, दे आर दे आर डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड फॉर देयर एक्सपेंसेस, फॉर देयर बेसिक नीड्स. ओके, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे कि योर ओल्ड फादर और मदर, आपके घर पे आपका बूढ़े माँ बाप होंगे, ओके. और योर, इफ यू आर मैरिड, देन इफ यू आर हैविंग ए स्मॉल सन और डॉटर, ओके, आर दे कैपेबल टू अर्न? द आंसर इज नो. छोटे बच्चे जो होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, क्या वो लोग अपना अर्निंग खुद कर सकते हैं? आंसर इज नो. दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर सन एंड डॉटर. एंड यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उनका मेंटेनेंस वो खुद संभाले. ऐसे कैसे भाई? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उन लोगों ने, आपका खुद का रिश्तेदार है, खुद का बेटा है, खुद का बेटी है, खुद का माँ बाप है, खुद का पत्नी है, तो उनका जो मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना, वो किसके ऊपर रहता है? इट इज अपॉन द पर्सन हु इज अर्निंग. उनके फैमिली पे जो अर्न करता है ना, उसके ऊपर इनका खर्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. एंड द पर्सन हु इज अर्निंग, ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई इंसान अर्न कर रहा है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को छुटकारा नहीं दे सकता. ये नहीं बोल सकता है कि नहीं, मैं तो कमाता नहीं हूं, मैं तो अपने माँ बाप को नहीं देखूंगा. भाई, कमाना पड़ेगा. देयर आर ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, यू आर बाउंड टू पे योर वाइफ. आप मजदूरी करो, आप रास्ते में भीख मांगो, आपको जो करना है करो, बट आपको अपने वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा. बिकॉज योर वाइफ इज योर लायबिलिटी, योर वाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. So you have to pay your wife. Got it? So this is about the maintenance pendant light and expenses in the proceeding. And उसी के साथ साथ कोर्ट का जो भी प्रोसीडिंग्स होता है, उसी का भी एक्सपेंस देना पड़ता है टू द पार्टीज. ओके, सो व्हाट इट एग्जैक्टली स्पीक्स, सेक्शन 24 of the Hindu Marriage Act, it speaks about the maintenance. If either spouse has no income for their own support or cover legal expenses. For example, I am the wife over here and I don't have sufficient source of income to handle my own sources. मान लो मेरे पास मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ओके, मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास उतना इनकम सोर्स नहीं है टू हैंडल माई फैमिली, टू हैंडल द लीगल प्रोसीडिंग्स. ओके, यू आर द हस्बैंड, ओके, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ मी, आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो. सो व्हाट यू डिड, यू फाइल्ड ए पिटिशन फॉर द जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स अगेंस्ट मी. आप कोर्ट में जाके ये बोलते हो कि मेरे को अपनी बीवी या अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं है, आई डोंट वांट टू स्टे विथ माय वाइफ. ओके, तो आप जब कोर्ट में जाके ये बोलते हो कि आपको मेरे साथ नहीं रहना है, देन आई एम द रेस्पोंडेंट ओवर हियर, यू आर द पिटिशनर. सो एज अ रेस्पोंडेंट मेरा भी कुछ ना कुछ कोर्ट एक्सपेंसेस रहेगा, हाँ या ना? बिल्कुल रहेगा.
बिकॉज अगर आपका कोर्ट एक्सपेंसेस रहता है, आप कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स पे जाते हैं, तो एज द रिस्पोंडेंट मेरे को भी अपना ये केस पे एक्सपेंस करना पड़ेगा. बट आई एम वेरी पोर, आई एम इनकेपेबल टू हैंडल माई ओन एक्सपेंसेस. इवन मेरे पास खुद का एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं है, तो मैं कोर्ट का एक्सपेंसेस कैसे संभालूंगी? सो इन दैट केस यू आर लायबल टू टेक केयर ऑफ माई लीगल एक्सपेंसेस ऑल्सो. अगर मैं खुद का लीगल एक्सपेंसेस खुद नहीं ले सकती, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे माई लीगल एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्ट. गॉट इट? एंड यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर if either of the spouse has no income for their own support, they can apply the court for the financial maintenance, and the court may order the other spouse to pay reasonable monthly expenses until this proceedings end. And the court should try to make a decision within 60 days after the notice to the another spouse. Okay. Okay. So what does it mean? It means when a wife or a husband is unable to maintain yourself. And yes, one more thing. The section 24 is the only section in the whole Hindu Marriage Act, in the whole legal system, in the whole Indian legal system. Because if you are talking about the Hindu Maintenance Act, if you are talking about the CRPC, Code of Criminal Procedure, which has been converted to BNSS, Bharatiya Nagarik Nyaya Sanhita. So in all these acts, if you see now, you can have a read upon this. The sections, the provisions about the maintenance, it only speaks about the maintenance to the wife, to the old father, mother, children, to them. None of the act speaks about the maintenance of a husband by the wife. मेंटेनेंस हस्बैंड वाइफ को देता है, ये हर एक्ट पे लिखा गया है. बट वाइफ अपने हस्बैंड का मेंटेनेंस दे सकती है, ये कहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया है, एक्सेप्ट द ओनली प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. हिंदू मैरिज एक्ट पे ये बोला गया है, मान लो देर इज ए मैरिज जहां पे द हस्बैंड इज फिजिकली इनकेपेबल. ओके, हस्बैंड के पास देर इज नो इनकम सोर्स नियर द हस्बैंड, वो अपना खर्चा खुद उठा ही नहीं सकता, ही इज फिजिकली इनकेपेबल टू डू दैट. एंड वाइफ नीड्स रिलीफ फ्रॉम द हस्बैंड. शादी के बाद हस्बैंड जब अर्न करने के लिए इनकेपेबल हो गई, तब हस्बैंड को वाइफ ने बोला कि अब मैं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हूँ. सो व्हेन द वाइफ इज टेकिंग डिवोर्स, एट दैट टाइम द वाइफ इज वेरी वेल कैपेबल टू अर्न. वाइफ अच्छा खासा जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है. So in that circumstances, if the husband applies for the alimony or the maintenance from the wife, the court may consider it. कोर्ट यहाँ पे देखेगा कि अगर हस्बैंड का सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे वो कमा नहीं सकता, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही डाउन है, बट तो वाइफ का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, वो बहुत रिच है, वाइफ अपना खर्चा खुद उठा सकती है एंड अपने हस्बैंड को भी उसका मेंटेनेंस दे सकती है. So in that circumstances, the wife is also entitled to pay maintenance to the husband. And this is the discretion of the court upon the earning of the husband and the wife. हस्बैंड एंड वाइफ को जो अर्निंग है ना, उसी को कंसिडर पे रख के कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. जब हस्बैंड हो या वाइफ हो, अपने लीगल मेंटेनेंस हो गया, कोर्ट का प्रोसीडिंग का जो भी लीगल मेंटेनेंस हुआ उसी का मेंटेनेंस के लिए, या फिर अपना खर्चा निकालने के लिए, अपना मंथली मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में अप्लाई करते हैं ना, देन कोर्ट सीज देयर इनकम सोर्स, उनका कितना इनकम होता है, उनका अर्निंग क्या है, उनका इनकम सोर्स क्या है, ये सारे कोर्ट पहले एग्जामिन करता है. And after examining all the facts, all the circumstances, the court takes a decision. कोर्ट डिसीजन लेता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि हाँ, यहाँ पे क्या करना चाहिए. व्हाट शुड बी डन ओवर हियर? क्या यहाँ पे हम वाइफ को रिलीफ ग्रांट कर देनी चाहिए? क्या यहाँ पे हस्बैंड जो कि अप्लाई किया है फॉर द मेंटेनेंस, ही शुड गेट द मेंटेनेंस?
दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यहाँ पे वाइफ जो है ना वो इनकापेबल है अर्न करने के लिए, उसका जो बेसिक नीड्स है ना वो पूरा करने के लिए उसका मंथली अलाउंस का जरूरत है, सो इन दिस सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट विल ऑर्डर द हस्बैंड टू पे द वाइफ। एंड जहाँ पे वाइफ अच्छा खासा अर्न करती है, इन दैट केस द वाइफ इज ऑर्डर्ड टू पे मेंटेनेंस टू द हस्बैंड। सिंपल है ना। और एक चीज आपको, एंड हाँ, वन मोर थिंग, जब ये मेंटेनेंस का जो भी आता है ना, द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस फॉर द पेमेंट ऑफ द एलिमनी इज सबमिटेड इन द कोर्ट। उसी के बाद फॉर एग्जाम्पल वाइफ ने अप्लाई किया है कि मुझे अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए, तो देयर विल बी ए नोटिस विल बी इशूड टू द हस्बैंड, नो डाउट। ओके, सो व्हेन द नोटिस विल बी इशूड टू द हस्बैंड, नोटिस इशू होने के बाद 60 डेज के अंदर ये केस डिसमिस हो जाना बहुत जरूरी है। द केस नीड्स टू बी डिसमिस्ड विद इन 60 days ऑफ द इशुएंस ऑफ द नोटिस। जिस दिन पे हस्बैंड को नोटिस इशू किया गया है कि आप, आपकी पत्नी ने आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस की फाइल की है, उसका 60 दिन के अंदर ये मामला का, इस मामला का फाइनल वर्डिक्ट आ जाना चाहिए, एंड द केस शुड बी finally decided in between the 60 days of the passing of the notice to the respondent. Okay, clear? Then comes the permanent alimony and maintenance. Okay, so what does it speak? When we're talking about the permanent alimony and maintenance, what does it speak? When maintenance can be ordered at the time of granting a divorce, or any time after, the court can order one spouse to pay the other for their support. The court considers both spouses' income, property, behavior, and circumstances when deciding on the amount and duration which cannot exceed the lifetime of the person receiving support. Okay, so what does the first provision speaks about the first clause? When we are talking about the permanent alimony, okay, for example, and one more thing I need to clear it out. When we're talking about the maintenance, or when we're talking about the alimony, what do you understand by this? The alimony or the maintenance not means the luxurious lifestyle. The maintenance or the alimony exactly indicates about to fulfill the basic life needs. किसी के लिए रहने का बंदोबस्त करना, उसी के लिए अच्छा से खाने का बंदोबस्त करना, उसी के लिए कपड़े का बंदोबस्त करना, खाना, रहना, कपड़ा, ये सब एक इंसान का ना बेसिक नीड्स होता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस और एलिमनी, इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द हस्बैंड। अगर हस्बैंड महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा है, then in that circumstances the court may order the husband to pay 60 to 70,000 rupees per month to the wife for the maintenance. अगर हस्बैंड ने महीने का 30,000 रुपीज कमा रहा है, then the court will order to pay the wife the amount of 15,000. Got it? So it is the discretion of the court to see the circumstances कि what is the actual need over here. यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे नीड क्या है, हस्बैंड का इनकम सोर्स कितना है, उसी को ही कंसिडर पे रख के ही द कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इज द अमाउंट शुड बी पेड टू द वाइफ इटसेल्फ। ओके, ये हो गया आपका पहला चीज। दूसरा हम बात करते हैं अबाउट द परमानेंट एलिमनी की। ओके, तो लेट मी टेल यू, when there is the situation of the mutual divorce, okay, there is the two kinds of alimony has been granted. The first is the permanent alimony or the maintenance. दूसरा होता है वन टाइम मेंटेनेंस। आपका जो परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस होता है ना, वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैरिड टू समवन, मैंने किसी को शादी की है। ओके, सो व्हेन आई हैव मैरिड टू समवन and I got a divorce from that person is liable to pay me. That person is entitled to pay me up to a period of the lifetime.
अगर कोर्ट ने ये डिसाइड करता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ जहाँ पे मैं कमा नहीं सकती, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस तो कोर्ट विल ऑर्डर माई हस्बैंड टू पे मी द परमानेंट एलिमनी फॉर माई लाइफ टाइम। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे बच्चे जिंदा है, तब तक बच्चे बच्चे का और माँ का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा एलिमनी का सारा खर्चा कौन उठाएगा? हस्बैंड उठाएगा। There will be a specific amount fixed. फॉर एग्जाम्पल मंथली 50,000 रुपीज। हस्बैंड वाइफ को हर महीने उतना अमाउंट देना मैंडेटरी बन जाता है। दैट इज कॉल्ड द परमानेंट एलिमनी, जहाँ पे हस्बैंड को अपना वाइफ का एक्सपेंस के लिए जिंदगी भर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का पैसा देना पड़ता है पर हर इन ईच मंथ। दूसरा होता है आपका वन टाइम पेमेंट, जहाँ पे जो कि स्पेशली आप लोगों का म्यूचुअल डिवोर्स पे होता है कि जब शादी टूटता है दोनों पार्टी डिसाइड करते हैं कि हम पहला पार्टी जो होता है ना, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो बोलता है कि मैं हर महीने उसी को पैसा नहीं दे पाऊंगा, एंड दिस शुड बी डन अपॉन द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। वहां पे वाइफ भी बोलना चाहिए कि चलो ठीक है, मुझे अपने हस्बैंड से हर महीने पैसा नहीं चाहिए, मुझे वन टाइम पेमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे मुझे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, एक ह्यूज अमाउंट का होता है ना वन टाइम पेमेंट, उतना मुझे चाहिए, मुझे उतना पैसा दे दो, बस मैं यहाँ से डिवोर्स देके चली जाऊंगी। स्पेशली इन द केसेस व्हेन द वाइफ इज रिच, जब जब वाइफ के पास पैसा होता है या वाइफ इज नॉट फेसिंग एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इन दो सर्कमस्टांसेस दिस वन टाइम पेमेंट एक्चुअली वर्क्स, परमानेंट एलिमनी नहीं होता है। वहां पे क्या होता है ना, एक बार डिवोर्स हो गया, 10 लाख 15 लाख कुछ अमाउंट का स्पेसिफिक एक्सपेंस फिक्स होता है, उसी अमाउंट हस्बैंड वाइफ को पे करता है एंड वहां पे उन लोगों का सारा रिश्ता खत्म हो जाता है। ये होता है आपका वन टाइम पेमेंट पे। और आपका जो परमानेंट एलिमनी है वहां पे ऐसा होता है कि जब तक वाइफ दूसरी शादी ना कर ले, क्या वाइफ का और कहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, या फिर वाइफ कहाँ पे नहीं चली जाती, जब तक वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती, जब तक वो हस्बैंड जब तक वो अपने आप नहीं कमा सकती, तब तक अपने बच्चों का, और अगर बच्चे हैं तो, और अगर बच्चे नहीं है तो अपने वाइफ का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसका जिम्मेदारी है? हस्बैंड का जिम्मेदारी है। दिस डिपेंड्स अपॉन द इनकम सोर्स ऑफ द बोथ द स्पाउसेस। हस्बैंड का इनकम कितना है, वाइफ का इनकम कितना है, ये सारी चीजों को कंसिडरेशन किया जाएगा, एंड उसी के बाद ही द कोर्ट विल स्पेसिफिकली डिसाइड कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, what how many amount of the permanent alimony should be granted। दूसरा, चेंजिंग ऑफ द मेंटेनेंस ऑर्डर। अगर ऐसा होता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि मेंटेन फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट हैज ऑर्डर टू पे द हस्बैंड टू द वाइफ द एलिमनी और द मेंटेनेंस ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ। ओके, 50,000 पर मंथ कोर्ट ने बोला कि आप मतलब अपने वाइफ को देने के लिए। द हस्बैंड यूज टू गिव 50,000 पर मंथ टू द वाइफ, मान लो देने चला, ऐसे 3 साल चला गया। 3 साल के बाद पता चलता है कि हस्बैंड का जो मंथली इनकम है ना वो बढ़ गया है। द हस्बैंड इज अर्निंग 4 लाख पर मंथ, 3-4 लाख पर महीना हस्बैंड यहाँ पे कमा रहा है, एंड वाइफ को कितना दे रहा है? 50,000 पर मंथ, क्योंकि वो पहले से कोर्ट का ऑर्डर था। यहाँ पे वाइफ जाके कोर्ट पे नोट रिक्वेस्ट कर सकती है थ्रू द एप्लीकेशन कि मेरा पति तब महीने का 1 लाख कमाता था एंड ही वॉज पेइंग मी 50,000 रुपीज 3 साल पहले, बट वो अभी महीने का 4 लाख कमा रहा है, एंड आई एम फेसिंग द फाइनेंशियल इश्यूज ओवर हियर, क्योंकि दिन पे दिन ये जो दर होता है ना चीजों का वो बढ़ता जा रहा है, एंड मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है क्योंकि दिन पे दिन हर चीज का दर बढ़ रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा बढ़ रहा है, तो महीने का 50,000 पे मेरा एक्सपेंसेस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, एंड आई वॉन्ट मोर मनी फ्रॉम माई हस्बैंड, मेरे को और भी चाहिए। एंड इफ द कोर्ट feels reasonable, कोर्ट कैन ask द हस्बैंड टू पे 1 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख of the rupees to the wife according to the circumstances। कोर्ट बोलेगा कि अगर आप कमा रहे हो तो आपके वाइफ एंड आपके बच्चे
वो अगर आपसे अलग रहते हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे देम। हमने तभी 3 साल पहले आपका फाइनेंशियल सिचुएशन देख के आपको ऑर्डर किया था कि आप अपने वाइफ को 50,000 दो। बट अभी सिचुएशन बदल गया है, अगर आप अभी ज्यादा कमा रहे हो तो आप अपनी बीवी को ज्यादा देना चाहिए। दूसरी बात, मान लो तो वाइफ हैज बिकेम फिजिकली इनकापेबल, पहले वाइफ कमा रही थी तो इसलिए कोर्ट ने बोला था कि कम दोगे तो भी चलेगा 50,000 पे, मतलब द कोर्ट हैज डिसाइड द अमाउंट ऑफ 50,000 टू गिव टू द वाइफ एंड द चिल्ड्रन। बट मान लो आफ्टर द सर्कमस्टांसेस तो वाइफ बिकेम फिजिकली डिसेबल्ड, वाइफ का तबीयत खराब हो जाती है, वो फिजिकली डिसेबल बन जाती है, वो अपना बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती है। इन दैट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में ऑल्टर द डिसीजन, द कोर्ट में इंक्रीज द अमाउंट। कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, अमाउंट जो है कि आज आपका वाइफ यहाँ पे डिसेबल बन गई है, तो यहाँ पे उसका जो एक्सपेंसेस था वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप पहले 50,000 पर मंथ दे रहे थे, बट अभी आपको अपने वाइफ को 1 लाख पर महीना देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग ऑफ द मेंटेनेंस अमाउंट। तीसरा सिचुएशन बताती हूँ। मान लो वाइफ वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द जॉब बिफोर, बट वाइफ का अभी 3 साल के बाद वाइफ इज हैविंग ए वेरी वेल पेड जॉब, जो जबकि वो महीने का 1 लाख 2 लाख कमा रही है। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे हस्बैंड का जो कि महीने का 1 लाख कमा रहा था उसी का जॉब चला गया है, या फिर ही बिकेम फाइनेंशियली इनकापेबल टू डू द पेमेंट। So in that circumstances, if the court thinks fit in the application of the petitioner, the court can decide, अगर कोर्ट की यहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे वाइफ को और मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, तो कोर्ट कैन ऑर्डर टू stop the maintenance or to decrease the amount of the maintenance. तो moreover this is the discretion of the court according to the situation कि यहाँ पे क्या करना सही है, according to the financial status, according to the earning of the husband and the wife, and it may alter from time to time। ऐसा नहीं है कि एक टाइम जो हो गया वो हो गया, वो डिसीजन जो है पार्टी का एप्लीकेशन से बदल सकता है। इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विथ द एप्लीकेशन ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ। ओके, नेक्स्ट आपका ये आता है रीजंस टू एंड मेंटेनेंस। ओके, सो व्हाट आर द रीजन जहां पे हस्बैंड और द वाइफ जो भी एक दूसरे पार्टी को मेंटेनेंस दे रहे हैं उस मेंटेनेंस को एंड किया जा सकता है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? फर्स्ट इज लैक ऑफ chastity of her wife or indefinite infidelity for a husband, and paying spouse can request the court to reduce or cancel the maintenance. Okay, and if the spouse has remarried or behaves improperly. Okay, that means when the husband or the wife, for example the husband is paying the alimony to the wife, but after 3 years the wife has remarried और किसी से शादी कर ली, तो यहाँ पे क्या हस्बैंड अपने वाइफ को और मेंटेनेंस देता रहेगा? क्यों? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि उनका डिवोर्स हो चुका है। दूसरी बात ये है कि आज तो वाइफ हैज नॉट रीमैरिड, वाइफ दूसरी शादी नहीं की थी, तब तक हस्बैंड जो है अपना मेंटेनेंस वाइफ को देता रहता था। बट अभी जब वाइफ रीमैरी कर गई है और किसी को शादी कर लिया, तो उसी का मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो गया? उसका दूसरा पति का हो गया। तो यहाँ पे उसको मेंटेनेंस देने का कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा, improper behavior to the spouse, that means for example the husband and the wife are staying separate from the each other, जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, वो एक एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, दे आर नॉट डिवोर्स्ड, but the wife is not behaving properly to the husband, she is having the extramarital affairs, she is not dedicated to the marriage. In this circumstances also the wife is not entitled to get the maintenance from the husband, and same with the husband. If the husband is getting maintenance from the wife, but the husband is not 100% dedicated to the married life, अगर हस्बैंड अपने वाइफ के साथ लॉयल्टी मेंटेन नहीं कर रहा है, उसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रखा है, या और दूसरी किसी से वो शादी कर लेता है, इन दैट सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो द हस्बैंड इज नॉट कैपेबल टू गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम द वाइफ। ओके, so this is all explained under section 25 under permanent alimony and the maintenance. Then section
26, it speaks about the custody of the children. So when we're talking about the custody of the children, we need to understand that the court can make interim and final orders for the custody, maintenance, and the education of the children, keeping their wishes in mind where possible. Even after divorce, the court can adjust these orders as needed. And this application should be resolved within 60 days. पहली बात ये है कि आपका ये जो कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का कस्टडी का जो भी एप्लीकेशन होता है, वो तो पहली बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम द वाइफ एंड आई हैव अप्लाइड फॉर द कस्टडी ऑफ माई चिल्ड्रन. ये चिल्ड्रन का कस्टडी का जो भी एप्लीकेशन होता है, जिस पार्टी ने कस्टडी के लिए अप्लाई किया है, पिटिशन फाइल किया है, उसका जो भी अपोनेंट पार्टी है, उसके पास नोटिस जाता है ना. द या when there is the service of the notice to the respondent, for example I am the wife, मेरे बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, but I am incapable to maintain my children and I have applied for the applied my okay, sorry, take another example. For example, I am a wife, me and my husband has divorced. मेरे पति और मेरे के बीच में बन नहीं रहा है and we are divorced from each other. Okay, so when there is the divorce between me and my husband, then what happens? My children are with my husband, but मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती हूँ. So in that circumstances, I can apply in the court of law. I can file a petition for the custody of my children. मैं अपने बच्चों का कस्टडी के लिए कोर्ट पे केस फाइल कर सकती हूँ कि मेरा बच्चों का जो कस्टडी है वो मुझे मिलनी चाहिए. And in that circumstances, if I am the petitioner, who is the respondent? My husband. बट इस सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स कर दीजिए, जहां पे बच्चे माँ के साथ रह रहे हैं एंड द फादर वांट्स द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन. बाप चाहता है कि उसी का बच्चे उसके साथ रहे एंड ही इज अप्लाइंग फॉर द कस्टडी. जो भी पार्टी कस्टडी के लिए अप्लाई कर रहा है, जो दूसरा पार्टी है, तो जो रेस्पोंडेंट है, एप्लीकेशन फाइल, एप्लीकेशन, पिटिशन अप्लाई, पिटिशन का एप्लीकेशन होने के बाद उसी का फिर अपोनेंट पार्टी को एक नोटिस इशू होता है कि आपके अगेंस्ट ऐसा एक केस आया हुआ है फॉर द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन. एंड उस नोटिस जब इशू होता है ना, वो नोटिस इशू होने का 60 डेज के अंदर ये मामला का फाइनल डिस्पोजल होना जरूरी है. ये जो भी केस कोर्ट पे पेंडिंग है, उस केस का फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए इन बिटवीन द 60 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ द नोटिस टू द रिस्पोंडेंट. ये हो गया आपका पहली बात. दूसरी बात ये है कि जब कस्टडी का बात आता है, यहाँ पे कोर्ट क्या देखता है ना, द अर्निंग ऑफ द फादर, द अर्निंग ऑफ द मदर, द मेंटल सिचुएशन ऑफ द फादर एंड मदर. माँ बाप का दिमागी हालत कैसा है, वो अपने बच्चे को सही तरीके से रख सकते हैं कि नहीं, ये सारे सिचुएशंस को देख के ही कोर्ट कस्टडी ग्रांट करता है. अगर कोर्ट को लगता है कि एंड इट इज द प्रायोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन इटसेल्फ, कोर्ट पहले बच्चे को पूछता है कि आप किसी के साथ रहना चाहते हो, आपका लगाव किसी से ज्यादा है, आप मम्मी के पास रहना चाहते हो, पापा के पास रहना चाहते हो. तो अगर बच्चे का अटैचमेंट मम्मी से ज्यादा होता है तो माँ के पास रहते हैं, पापा से ज्यादा होता है बाप के पास रहते हैं. बट यूजुअली ऐसा होता है कि इवन इफ द कस्टडी इज ग्रांटेड टू वन पर्सन, अगर माँ को कस्टडी ग्रांट किया जाता है, द फादर हैज ऑल राइट टू मीट हिज और हर चाइल्ड एनी टाइम. अगर एक स्पाउस को कस्टडी मिलता है, मान लो द मदर इज द चाइल्ड वांट्स टू स्टे विथ हिज मदर and the father is paying the maintenance to his child. Okay, in that circumstances, the father has all right to meet his child at any circumstances. वो अपने बच्चे को कभी भी मिल सकता है. Okay, so the custody of the children is decided upon the income source or the financial stability, the mentality, the educational scope of the children. तो अगर माँ के पास रहता है बच्चा
अगर माँ का इनकम सफिशियंट है बच्चे को पालन पोषण करने के लिए एंड मदर डजंट रिक्वायर एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द फादर, देन द मदर टेक्स द होल कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। बट अगर ऐसा होता है कि माँ को फाइनेंशियल हेल्प का जरूरत होता है तो बच्चे माँ के साथ रहते हैं बट फादर प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सपोर्ट। But if it is the situation that the mother is mentally incapable or financially incapable, or is there any other issue जहाँ पे mother is unable to take care of the children, then the custody goes to the father. एंड ये ध्यान रहना चाहिए जब बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल 2 साल का बच्चा, इन दैट सर्कमस्टांसेस until and unless the child is up to the 5 years of the old, बच्चे 5 साल होने तक उसका कस्टडी माँ के पास रहना चाहिए एंड 5 साल होने के बाद कस्टडी बाप के पास जा सकता है। बट यूजुअली मदर इज द प्राइमरी कस्टडी होल्डर ऑफ द चिल्ड्रेन, बिकॉज ये जो होता है ना बच्चों का रिक्वायरमेंट, वो माँ ही अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी which is expensed under section 27. What does it speaks? When the court, when there is the point to division of the marital property, the court can decide how to divide any property given to the couple or around at the time of the marriage if it belongs to both of them. When the property belongs to both the husband and the wife, then in that situation, this is the discretion of the court to decide कि कौन सा प्रॉपर्टी किसको देनी है, what property should be given to whom. For example, if there is the joint account of the husband and the wife, when there is the 1 lakh of the rupees in the joint account, then the husband will get 50,000, the wife will get 50,000. वाइफ अपने घर से अगर जब जब डिवोर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल वाइफ अपने घर से जो गहने हो गया, सामान हो गया, जो सारी चीजें लेके आई है, वो सारा चीज वाइफ अपने साथ वापस लेके जाएगी। और जो आपका बोलते हैं ना स्त्री धन, दैट मीन्स वाइफ को जो जो गिफ्ट पे मिलता है, वाइफ को घर वाले जो भी सोना हो गया, पैसा हो गया, जो वाइफ को गिफ्ट के तोहफे के तौर पर मिलता है, उसी के ऊपर वाइफ का ही हक होता है, स्त्री धन के ऊपर सिर्फ वाइफ का राइट है। सो व्हेन देयर इज द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, मैरिटल प्रॉपर्टी, उसी के ऊपर वाइफ का हक होता है। सो व्हाट इज द हाउ द प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड? इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू डिवाइड इट। किस प्रॉपर्टी के ऊपर किसका किसका हक है, वो कोर्ट अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ द पार्टीज द कोर्ट विल डिसाइड। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन 28। इट स्पीक्स अबाउट अपील्स अगेंस्ट द court decisions, and 28 speaks about the enforcement of the court orders. Okay, so as we have already understood that the marriage proceeding is a civil proceeding, the divorce proceeding is considered as the divorce civil proceeding. So the decision uh, by the court of the session or by the high court or the supreme court in this marriage proceedings will be considered as the civil court order. सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर होता है ना, the disposal of the cases or the decision of the divorce or the judicial separation or the or whatever the marital decisions it may be, restriction of the conjugal right, it will be considered as the civil court order, and it will be enforced the same way as the civil court order only. Then section 28 speaks about the appeals against the court decision. Okay, and when there is the appeal against the court decisions, it will follow as per the civil court proceedings. Okay, that means any decision in the court in these matters can be appealed like other the civil court decision. Civil court के decision के against the procedure which is followed for the appeal, the same procedure will be followed in this marital issues or under this section, under the Hindu Marriage Act. Okay. So when there is the issue about the alimony or the issue about the maintenance, the child custody, in those circumstances, the appeal can be preferred. But when there is the appeal for the
But when there is the appeal for the only the court fees, for example, one party has not paid the court fees, so it can be simply does through the revision or the simple application. So there is no need to file a appeal over there. So in that circumstances, the appeal is not allowed. But generally, in the against the decision of the divorce, the maintenance, the child custody, the appeal can be done. Okay. And when there is the decision by the session court or the decision by the high court, and the party is not satisfied with the decision of the lower court, then in that circumstances, the party can do the appeal within 90 days of that specific decision. 90 days means एक महीना कितना दिन होता है? 30 दिन. 30 into 3, that means 3 months. The party has 3 months to do the appeal against the specific decision. जबकि कोर्ट का, फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट हैज द decision about the custody of the child, and the party wants to do a appeal against it. Okay. And the appeal can be done within the 30 days from the final decision of the court. कोर्ट का जब भी फाइनल डिसीजन आता है ना, उसी का 30 दिन के अंदर, उसी का, सॉरी, 90 days, दैट मीन्स 3 month. इन बिटवीन द 3 month द अपील कैन बी डन. एंड अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया है, उसी के बाद अपील होता है, द पार्टी नीड टू शो द अप्रोप्रिएट रीजन इटसेल्फ. अगर अगर पार्टी अप्रोप्रिएट रीजन शो नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती है, दैट व्हाई ही डिडंट और शी डिड नॉट फाइल एन एप्लीकेशन इन बिटवीन 90 days और 3 month, देन द अपील विल बी रिजेक्टेड. ओके. तो अपील का ड्यूरेशन कितना है? फ्रॉम द डिसीजन 90 days, that means 3 months. So now we are going to discuss the last provision, that is section 29, that is about the savings. So what does it mean? The first point, it speaks about the marriage is conducted between the Hindus before the act are valid, because this act came into force in 1955, and before the coming into the existence of this act, even if the spouses were in same gotra and belong to the different religions or caste, the marriage is not considered as invalid. That means when there is the circumstances that the parties are married before 1955, when this act was not in force. Okay. And the spouses were not from the same gotra. For example, one party is Hindu, another party is Muslim or different religion. That is not invalidating the marriage. The marriage will be considered still valid, because according to the Hindu Marriage Act, according to the Indian law, the person can marry to any other person. According to the Hindu Marriage Act, agar if there is a person from the own blood relatives and sapindas of each other, then in that cases the marriage is not possible. But except the blood relatives or the sapindas, if the person is from the same gotra but different religion or caste, the marriage is considered still valid. Okay. The second point, this act doesn't interfere with any customs or special laws that allow the divorce for the Hindus. For example, there are a lot of tribal people are living in India. They have been ruled over their own tribal laws, their own specific laws. So this Hindu Marriage Act is not opposing any special customs, any special laws of the other people. This is applied to only Hindus. But the people who are Hindus, but they have been governed by their own customs or own special laws, which is not illegal in nature, then that is not prohibited in this act. Next, any divorce cases started before this act can continue if the act has not passed. For example, if any kind of the divorce cases is being governed under the Special Marriage Act, okay, under 1954 or any other law. So, Hindu Marriage Act, even if it has come in force, it will not take over those acts, and the act which was governing the divorce proceeding before the passing of this act, the same act will be continued for that specific cases. Got it? And the last point, Special Marriage Act. This act does not override provisions of the Special Marriage Act related to Hindu marriages conducted under this act.
Special Marriage Act पे there are a lot of provisions which is exactly similar to Hindu Marriage Act, and we are going to have a read on this Special Marriage Act very soon. उसी के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. So we need to understand when there is the provision for the Special Marriage Act, this Hindu Marriage Act will not override any provisions of the Special Marriage Act itself. Okay. So this is about the Hindu Marriage Act, guys, and we are going to have one more session for the uh, case laws and important points to be discussed, that will be have in the another specific one session. This is all about the provisions of the Hindu Marriage Act. I think this is we are done for today, and thank you. The Hindu Marriage Act is over now, and we are having one more class later for the case laws and the revision classes. That is all for today. See you. Thank you. Bye bye. Take care.